students, today we are starting with a new topic, but till now you have done transactions, you know recording is done, after transaction happens, then classification is done, then we do summarizing. In summarizing, we calculate the profits and losses of the firm or company. Next, we interpret all the results, means to show all the results to the interested parties, and we know that the interested parties are internal users as external users. So the information should be of that type so that it can be compared and it can be relied. So information should be comparable and reliable. So we know that when we do interpretation and when we do comparison of the information, the comparison may be between interfirm and between interperiod. Interfirm means, suppose when there are two firms, three firms, A, B, C, A firm, B firm, C firm, and we compare it, means the information is compared with all the firms. We compare our performance with other firms so that we can make a result that whether we are earning more than and where we stand. So interperiod means, suppose we are firm X and we are preparing accounts and 1 year account we have prepared. In next year we also prepared accounts. So we compare the results or the information that we through all processing we have received. The information is compared between the years. We compare 1 year with second year, whether we are doing well or not. So this comparison can be only done in case we are following consistent policies और consistent principles. तो हमारे जो principles हैं, policies हैं, अगर वो consistent होंगी, similar होंगी एक ईयर से दूसरे ईयर में, या फिर एक फर्म की दूसरे फर्म से पॉलिसीज मिलती होंगी, तभी वो कंपैरिजन पॉसिबल है. तो हमें पता है कि जब हम ट्रांजैक्शन मूव कर रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, देन समराइज कर रहे हैं, हमारे पास प्रॉफिट्स आ गए हैं हमारी फर्म के, और वो इंफॉर्मेशन हम कंपेयर करते हैं. हम अपनी स्टेटस को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, या तो जो कि हम इंटर फर्म में करते हैं, या फिर हम अपनी ही कंपैरिजन खुद से करते हैं. दैट मीन्स कि फर्स्ट ईयर में मैंने कितना अर्न किया, हमारी फर्म ने कितना अर्न किया, एंड सेकेंड ईयर में हमारी फर्म ने कितना अर्न किया. तो हम कंपैरिजन करते हैं. तो वो कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास एक स्टेबल पॉलिसी हो और एक स्टेबल प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हों जो हम फॉलो करें, सो दैट हाँ जो हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं वो पॉसिबल हो सके, और वो लॉजिकल भी तभी होगा. सपोज एक फर्म है जो और मेथड्स यूज़ करती है कैलकुलेशंस के, तो दूसरी फर्म एक डिफरेंट मेथड यूज़ करती है, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा. सो फॉर कंपैरिजन इट इज़ नेसेसरी that consistent policies should be there, consistent principles should be there, and for that consistent policies के लिए, principle के लिए ICAI Indian Chartered Accountants of India ने कुछ हमें रूल्स बताए हैं, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स बताए हैं. कुछ ऐसे रूल्स, प्रिंसिपल्स जो सभी पे अप्लाई होते हैं, जो अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं. तो वो रूल्स सभी पे अप्लाई होते हैं, तो उन रूल्स को हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हमारे पास 11 ऐसे कंसेप्ट हैं
और 3 ऐसा कन्वेंशन हैं जो हमारे पास हैं, 11 कंसेप्ट एंड 3 कन्वेंशन जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन दिस वीडियो और इन फर्दर वीडियोस। तो ये जो सारे कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस हैं तो एक स्टेबल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। तो सभी अकाउंटिंग फर्म्स इन्हीं कंसेप्ट को फॉलो करती हैं सो दैट जो इंफॉर्मेशन है वो कंपैरेबल भी हो, जो हमारे पास प्रॉफिट आया वो हम अदर फर्म्स के साथ कंपेयर कर सकें और रिलायबल भी हो। सो हम वन बाय वन कंसेप्ट और कन्वेंशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग कंसेप्ट्स। So first concept is business entity concept. This concept says that business is a separate entity from its owner. Owner is different and business is different. Suppose owner invests capital in the business. Say 1 lakh owner is investing in the business. So owner is giving to business 1 lakh rupee as capital, and for that amount business is liable to pay it to owner back. Owner अगर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख रुपीस बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए वो 1 लाख रुपीस जो है ऑनर के वो एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मीन्स वो उसे ऑनर को वापस करने हैं। सो बिजनेस के लिए जो एक ऑनर है, बिजनेस के लिए ऑनर जो है वो क्रेडिटर है। क्रेडिटर उस पर्सन को कहते हैं जो जिसको हम लायबल हैं पे करने के लिए। सो 1 लाख रुपीस हमारी लाइबिलिटी है जो ऑनर बिजनेस को पे करता है। सपोज अगर आप ऑनर हो तो आप बिजनेस रन कर रहे हो, तो आप एज अ ऑनर अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो दैट मीन्स आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो अगर आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो जो बिजनेस होगा वो सेपरेट होगा आपसे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाइबिलिटी है और बिजनेस आपको देने के लिए वो पैसे लायबल है। तो अगर हम उसको कैपिटल देते हैं, ऑनर अगर कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो उस कैपिटल के ऊपर उस पर्सन को दैट मीन्स ओनर को इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि अगर हम किसी को पैसे यूज करने के लिए देते हैं तो उस पर हम इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो जैसे हम किसी से इंटरेस्ट पे पैसे भी लेते हैं, सेम उसी तरह ही ऑनर अगर बिजनेस को दे रहा है कुछ यूज करने के लिए तो बिजनेस उसे इंटरेस्ट देने के लिए लायबल है। तो इसका मतलब ये है दैट बिजनेस इज लायबल टू पे टू ऑनर द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सो जब बिजनेस ऑनर को क्या क्या देगा, एक तो कैपिटल देगा और एक इंटरेस्ट देगा। सपोज वो इंटरेस्ट है 5%, तो अगर हम 5% के अकॉर्डिंग देखें तो 5000 हमारा इंटरेस्ट है। तो जब ऑनर बिजनेस से पैसे वापस लेगा तो वो कितने देगा, 1,05,000 और बिजनेस 1,05,000 ऑनर को देने के लिए लायबल है। नेक्स्ट एक और चीज भी है, मान लो ऑनर को कुछ जरूरत पड़ जाती है, उसके कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जो ऑनर ने पे करने हैं, उसके लिए वो बिजनेस में से कुछ कैश लेता है। तो अगर वो बिजनेस में से कैश लेता है तो बिजनेस ये सपोज करता है कि जो आपकी मेरे पास कैपिटल पड़ी है उसमें से मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ। सपोज ऑनर ने अपने बच्चों की फीस डिपॉजिट करवानी है, उसके लिए वो ड्राइंग्स ले रहा है 20,000 रुपीज ऑनर ने बिजनेस से लिए। तो दैट मीन्स कि अब अगर ऑनर बिजनेस में 1 लाख रुपीज लगा रहा था, उसमें से उसने अब 20,000 रुपीज
जो है एज अ ड्राइंग्स ले लिए। इसके ऊपर भी ऑनर को बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना होगा। ये अमाउंट पे तो बिजनेस ऑनर को इंटरेस्ट देगा और इस अमाउंट को क्योंकि उसे 20,000 को बिजनेस को वापस करना है, इसी तरह से इंटरेस्ट को भी उसको वापस देना है बिजनेस को। ठीक है, देन जो 20,000 और इंटरेस्ट दोनों हैं वो एक ऑनर लायबल है बिजनेस को पे करने के लिए। तो जब हम कैपिटल निकालते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हमने ये देखना हो कि ऑनर ने कितना इन्वेस्ट किया, कितनी उसकी ड्राइंग्स थी, ये सारी टोटल कैलकुलेशन काउंटिंग करनी हो, तो हम क्या करते हैं कि हम कैपिटल जितनी उसने ऑनर ने लगाई प्लस कर देते हैं उसमें इंटरेस्ट, क्योंकि हम उसको इंटरेस्ट भी देंगे उसकी कैपिटल के ऊपर, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स उसने बिजनेस में से अमाउंट लिया, और माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि हमने उनसे मतलब बिजनेस ने ऑनर से इंटरेस्ट लेना था। तो ये दोनों चीजें लेनी थी और ये दोनों देनी थी। तो जो देना था उसमें से हम जो हम लेना चाहते हैं वो डिडक्ट करके हमारा टोटल हम अमाउंट निकाल लेंगे कि हमें अब ऑनर को कितनी कैपिटल एंड में पे करनी है। ठीक है, तो हम कौन सी कितनी कैपिटल के लिए लायबल हैं एंड में उसको पे करने के लिए। ये था सारा डिस्क्रिप्शन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का। एक और पॉइंट भी है, सपोज ऑनर एक बिजनेस के अलावा एक और बिजनेस भी रन कर रहा है, जिसमें बिजनेस में ऑनर ने एक कैपिटल भी लगाई है एंड एवरीथिंग दैट ही इज डूइंग इन दिस बिजनेस, ही इज डूइंग इन दिस बिजनेस ऑल्सो बिजनेस सेटिंग। तो ये हमारे जो दो बिजनेस हैं उनको हम सेपरेट ट्रीट करेंगे, ये दोनों सेपरेट हैं। अगर एक टाइम पे ऑनर दो बिजनेस रन कर रहा है तो बिजनेस 1 बिजनेस 2 से सेपरेट होगा, और जब भी ऑनर लास्ट में हम उसे पेमेंट करेंगे तो हम उसे इस तरह से निकालेंगे कि ऑनर ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, देन इंटरेस्ट वी आर लायबल टू पे टू ऑनर, then drawings that honor is liable to pay to business, and interest is also honor is liable, business is liable to pay honor. These two things business is liable to pay and these two things honor is liable to pay. तो ये दो चीजें जो हैं वो ऑनर ने देनी है, तो इन दोनों को डिडक्ट करके जो बचेगा वो कैपिटल हम ऑनर को उसकी वापस करेंगे। The main thing is that business entity concept says that business is a separate entity from its owner, and owner investment in the business, that is capital, is business responsibility to pay him back, and it is known as the liability of the business. Interest is also known as the expense. Interest is expense for business because business को अब ऑनर को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो उसके लिए खर्चा हो गया। नेक्स्ट ड्राइंग्स की अमाउंट है वो उसके कैपिटल अमाउंट में से कट हो जाएगी, इसी तरह इंटरेस्ट भी है वो ऑनर लायबल है बिजनेस को पे करने के लिए। So this is our business entity concept. Next concept is money measurement concept. Money measurement concept says that everything which is related to money, every transaction that belongs to business or belongs to money is recorded in the business. Even some more important things there are in business, but if they are not related to money will not recorded in business.
कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो मनी से रिलेटेड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, क्वार्रल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। अगर प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर में झगड़ा है कुछ, उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन भी रुकता है और हमारा सेल्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। बट ये ट्रांजैक्शन को और ये हैपनिंग को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसको इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट इज, इफ आवर कंपटीटर हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट। हमारा कंपटीटर है, उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में, उसका इफेक्ट हम पे क्या पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके कंपैरिजन में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट वी डोंट कंसिडर दिस बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मनी। और वो सारी चीज़ें जो मनी से रिलेटेड हैं, दैट मीन्स परचेजेस। सपोज यू डू परचेजेस, and if you do purchases, suppose you are purchasing 100 units of some commodity, a commodity you are purchasing, and 1000 units of a commodity you are purchasing, then purchases is not recorded in units, it is recorded in money. Suppose per unit rate is 10, so it is recorded in money. On the other side, if your assets are there, suppose you have 10 machines, then the value of machine is not counted by 10. You count the value of the machine in terms of money. Suppose you have 10 machines and the value of one machine is 10,000, then you have machines or assets of rupees 1 lakh. Just like furniture, you have furniture, you have chairs, tables in your office, but these chairs, tables can not be in counted terms, it will be in money measurement. Suppose one chair is there, 10 chairs are there, and we will record the value of the chairs. Just like that, sales are there. We are selling something, these product, these commodities we have purchased, and now we are selling these commodities, 1000 units we are selling at the rate of 12. 2 is profit, 12 at the rate of 12 we are selling. अगर हमारे पास 1000 यूनिट है हमारी ये, और हमने उनको बनाया और उसके बाद हम 12 रुपए के हिसाब से उसको बेच रहे हैं, तो हम 12,000 अर्न कर रहे हैं। देन सारी चीज़ें जो ये हैं वो अगर मनी के मेजरमेंट में होंगी तभी काउंटेबल हो सकती हैं, और तभी बिजनेस में हम उनको काउंट करके, रिकॉर्ड करके, उनको एनालाइज करके एक रिजल्ट बना सकते हैं कि हम प्रॉफिट में हैं या हम लॉस सफ़र कर रहे हैं। सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी, दैट इज एवरी ट्रांजैक्शन दैट इज इन द टर्म्स ऑफ मनी इज रिकॉर्डेड इन बिजनेस। Our next concept is going concern concept. This concept says that business is a going concern. That means business will continue for a long period of time and it is continuing enterprise. From year to year it will continue. It will continue from 1 year, 2 year and so on. So we will not restrict the life of the business from its starting point. हम पहले से ये इमेजिन नहीं करके चलते हैं कि बिजनेस हम 4 साल के लिए करेंगे या 5 साल के लिए करेंगे। तो हम बिजनेस को एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सपोज करके चलते हैं कि एक बिजनेस अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसको हम बहुत आगे लंबा टाइम तक चलाएंगे। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बिजनेस में हमारे साथ बहुत सारी ऐसी
पार्टीज होती हैं जो हमारे साथ अटैच्ड होती हैं, जिनसे हमें लोन प्रोवाइड होता है, जो हमारे डिबेंचर्स को परचेज करते हैं। तो वो जो आउटसाइड पार्टीज हैं जो हमें लोन प्रोवाइड करती हैं, वो पार्टीज हमें लोन प्रोवाइड करेंगी तभी करेंगी अगर हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है। अगर हम 1-2 सालों में बिजनेस अपना ख़त्म करने वाले हैं, उसको बंद करने वाले हैं, तो कोई भी जो है इंस्टीट्यूशन हमें लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। सो हम इमेजिन करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस एक कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज है और हमारा बिजनेस ईयर टू ईयर चलता रहेगा। इसी पे बेस्ड हमारी असेट्स और लायबिलिटीज़ की भी क्लासिफिकेशन है। हमारी असेट्स को हम करंट और नॉन करंट में डाइवर्सिफाई करते हैं कि असेट्स हमारी फिक्स्ड भी होती हैं और करंट असेट्स भी होती हैं। इसी तरह से लायबिलिटीज़ भी करंट और नॉन करंट होती हैं। तो वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे ही बेस्ड है और वो इसको जस्टिफाई कर रही हैं कि अगर ये कंसेप्ट है तभी हम अपनी असेट्स की और लायबिलिटीज़ की लाइफ को क्या है एक बाउंडेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारी असेट्स अगर फिक्स्ड असेट्स हैं तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हैं। अगर हम कोई असेट परचेज कर रहे हैं, मान लो हमने कोई मशीनरी परचेज की है, तो अगर हमने मशीनरी परचेज की है तो हम उसे 10 ईयर्स तक परचेज करके यूज़ करेंगे, 10 ईयर्स तक। और अगर हमने कुछ हमारे पास करंट असेट्स हैं, दैट मीन्स कैश है, तो उसमें वो टाइम टू टाइम चेंजेस होती रहती हैं। तो हमारी जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उसकी डाइवर्सिफिकेशन जो है वो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। वी नो दैट business is going concern, that business will continue for a long period of time, and the true position of the business only can be taken at the time of wind up of the business। अगर हमें कोई भी बिजनेस की ट्रू पिक्चर चाहिए कि वो बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, कुछ अर्न किया नहीं किया, और वो हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब बिजनेस की लास्ट मोमेंट पे, जब वो बिजनेस खत्म हो रहा है। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑनर, क्रेडिटर, मैनेजमेंट, they all are interested in our business. Why they are interested? Because they want to know what are the profits of the business, because they have given us loan in term of capital. Honor gives us loan in term of capital, and creditor has given us things on credit, or we have taken loans also. Management is interested because he wants to formulate policies. So all these persons, owner, creditor, management, they all are interested in business so that they can know what are the profits of the business. So for that purpose we classify or we divide the business life into number of years, and business life is divided in the 12 months period, that is known as accounting period. बिजनेस की लाइफ को हम 12 मंथ्स के पीरियड में बाउंड कर लेते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। तो बिजनेस की हमारी जो लाइफ है उसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं ईयर्स टू ईयर्स, ईयर 1, ईयर 2, 12 मंथ्स का एक ईयर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस की लाइफ को एक्सपैंड कर लेते हैं, सो दैट हम टाइम टू टाइम हर ईयर के बाद प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर सकें और वो प्रॉफिट्स हम इन तक पहुंचा सकें कि हमारे प्रॉफिट्स क्या हैं। सो द बिजनेस लाइफ इज डिवाइडेड
between 12 months time period and that time period is known as accounting period. उसको हम accounting period कहते हैं. वो period 2 types का हो सकता है. ये 12 months हम दो तरह से काउंट कर सकते हैं. एक होता है अकाउंटिंग ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर. जो अकाउंटिंग ईयर है वो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम काउंट करते हैं एवरी ईयर. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर 2017. We will calculate all the we will record all the transactions, classify, then interpret all the results from 1st April to 31st March of every transactions. Every transaction that is between 1st April to 31st March will be counted in this period. And if we talk about 2000, and this will be from 2017 April 1st 2018 31st March, because it will be next year. And if we talk about 2018 from 1st April to 2019 31st March, the next period will start. So it is first accounting period, it is second accounting period. So we divide the life of the business into different accounting years. If we suppose it is accounting year we are following. अगर हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि हम अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं तो हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है 12 मंथ्स के लिए. तो अगर हम सपोज करें कि हम ईयर 2017 की बात कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से लेके 2018 के 31 मार्च तक हमारा फर्स्ट ईयर होगा एंड कॉन्सिक्वेंटली हम आगे चलते जाएंगे. द मेन थिंग इज दैट अकाउंटिंग ईयर बिलोंग्स टू फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो अगर हम ये कहें कि हमारा अकाउंटिंग ईयर है तो वो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक. नेक्स्ट है कैलेंडर ईयर. कैलेंडर ईयर वी ऑल नो दैट फ्रॉम 1st Jan to 31st December. So if we talk about 2017, if we are following calendar year, so the transaction that will come from 1st January to 31st December, that will come in the accounting year of the calendar year of 1st January to 31st December. कैलेंडर ईयर का मतलब है कि 1st जनवरी से लेके 31st दिसंबर तक हमारा 1 ईयर बनता है. और उसी के अकॉर्डिंग अगर 2018 की बात करें नेक्स्ट ईयर की तो हमारा 1st जनवरी से 31st दिसंबर तक हमारा नेक्स्ट ईयर है 2018. So we can say the business life is divided into 12 months time period, that is known as accounting period, and the accounting period is of two types. First accounting year, then calendar year. accounting year को हम financial year भी बोलते हैं. accounting year को हम financial year भी कहते हैं. financial year. And the calendar year starts from 1st January to 31st December. The calendar year starts from 1st January to 31st December. So this is our counting period concept.